ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दो रिपोर्टर, एक पश्चिम बंगाल से सिंगेंदु भट्टाचार्य और पुणे महाराष्ट्र से प्रतीक गोयल। आप दोनों का पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू। इन दोनों रिपोर्टर्स की खबरें आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में और बिहार के कई हिस्सों में अभी रामनवमी के बाद दंगे हुए हैं। तो भट्टाचार्य सर की जो रिपोर्ट है वो न्यूज़ लॉन्ड्री में प्रकाशित हुई है। वहीं प्रतीक गोयल जो न्यूज़ लॉन्ड्री के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट की है, काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है और आप सबको पढ़नी चाहिए। दोनों रिपोर्ट आप सबको पढ़नी चाहिए। वो रिपोर्ट ऐसी है कि मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी निकली और उसमें 89-88 पोस्ट थे और जो लोग उसमें टॉपर हुए, जिन्होंने सब कुछ निकाला, उनको कहा गया कि इस वैकेंसी में कुछ प्रॉब्लम है और वो एक्सटेंड होगा या दूसरे बहाने किए गए। और उनके जगह पे जिन लोगों को लाया गया उन सब का बैकग्राउंड प्रतीक गोयल ने निकाला है और आप उस बैकग्राउंड को जानकर हैरान हो जाएंगे। तो हम इन दो स्टोरीज पे बात करेंगे। सिग्नेंदु सर, शुरुआत आप ही से करते हैं कि रामनवमी जो एक जश्न का त्यौहार है, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ। हम सब जब छोटे थे तो रामनवमी पे हम देखते थे कितना जश्न का माहौल होता था। बिहार में और पश्चिम बंगाल में और बाकी हिस्सों में कैसे ये हर एक बार, अब पिछले कुछ सालों से या पहले भी होता था हिस्ट्री में, ये कन्वर्ट हो जा रहा है दंगों में, या इसका मतलब कैसे ये कन्वर्ट हो जा रहा है? और जो आपकी रिपोर्ट है हावड़ा पश्चिम बंगाल में, वो कैसे हुआ? आपकी रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे सबको दरकिनार किया गया, हथियार लेके आए गए, उसमें गाड़ी लेके डीजे बजे, और एक जो आजकल गाने ऐसे आ गए हैं जो प्रोवोकिंग हैं। तो थोड़ा संक्षेप में बताएं क्या हुआ। देखिए, अभी तक ये परिष्कार नहीं है कि उसका ट्रिगर क्या था। हम लोगों को ये पता है, जो वीडियो फुटेज या मेरे से मिल चुका है, से वी कैन सी दैट both Hindus and Muslims took part in acts of vandalism, and there was no death, there was no major injury. There was mostly uh, vandalism of vehicles, shops, pelting stones at high rises, things like that. It happened on the GT road, and on the same spot where the same clash happened last year also during the Ramanavami procession. How this festival of Ramanavami converted into a medium for riots, it's a different story. It's a bigger story that we can discuss otherwise. One point should know opposition parties. Uh, we don't really see Ramanavami related riots in states ruled by the BJP. But the point is that in West Bengal, Ramnavami procession is a new culture. अच्छा। Ramnavami separately was part of the festival calendar, and it was not a mass event, not a public event as such. Uh, but after the rise of BJP and RSS in 2013, they started focusing on this Ramnavami, and actually the first large-scale Ramnavami celebration happened in the state only in 2017. So it's a 5-6 year old festival, the kind of festival that we see now. And here uh, it is unclear how the police dealt with these organizers, knowing that there was a case of trouble last year, and that this route, this rally will pass through the same route. Uh, the police initially, it looks like they were cautious, and so on March 21st, 9 days before the rally, they wrote to the organizers, setting out a few guidelines, like there will be no motorbikes, there will be no weapons, there will be no DJ music, and importantly, that the rally will have to conclude by 5 p.m. जी। The police decided on these aspects, and the rally schedule that it should conclude. It must strictly, police wrote strictly, conclude by 5 p.m. because
they wanted the festival, the procession to be over before the iftar break, जी, before iftar. There were two rallies, one by Vishwa Hindu Parishad and another by a local Hindu organization called Anjani Putra Sena. Anjani Putra is also a name for Lord Hanuman. So uh, these two Hindutva outfits, their rallies, one was following the other. They both started late, and organizers of both these rallies, they had in advance told the police that they are not going to adhere to the schedule that the police have given them, that the rally won't conclude by 5. Both of them had told the police. Uh, at the end, the police did not give them the formal permission later, but allowed them to take out the rally and made a huge police arrangement also for safety and security reasons. But there we could see as evidence as we have got that this so-called DJ music was playing this Hindu pop songs, and the lyrics of the we have linked those lyrics, we जी, have जी, mentioned those songs in our reports. And then there were people with weapons, some with swords, and some also with revolvers, and they were displaying and brandishing those. Now, we don't know what exactly triggered the clash there, but the moment the procession reached the PM Basti area, which is the local of of last year's clash over Ramnavami, the moment it reached that area, there was a clash. Uh, and but who started? There is no clear idea yet. The police and the CID are still trying to scanning those CCTV footages that they can avail from the area. सर एक सवाल जिस पे हम आगे विस्तार से भी बात करेंगे, पर मैं यहाँ अपने जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पूछ लेता हूँ। ठीक है, ये जो राइट्स होते हैं इसमें जो संगठन है वो आगे बढ़ते हैं, वो विवाद करते हैं और चीज़ें खराब होती है। पर एक सवाल स्टेट गवर्नमेंट पे तो उठता है ना कि अगर आपको पता है कि ऐसा होता है और आपको पता है, तो आप अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप आपके कैपेसिटी पे भी सवाल उठेगा कि आप नहीं कर पाए, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या सरकारें भी चाहते कि थोड़ा इससे ध्रुवीकरण हो, थोड़ा बंटवारा हो। क्या दिखता है, थोड़ा इसको आप बता सकते See, there are answer to both sides of your question. First, the police, yes, the police role is questionable, and because the way the police handled the whole thing, they should have expected all what happened. हैं? जी, And so there should have been more police action and preparedness. It looks now the police will also have to answer it before the Calcutta High Court because the case is going on there. So, but we can see there were visible lapses on the part of the police. जी, And the second thing is that is the state government also wanting also desired that such things happen so that political polarizations take place. This is what the left and the Congress, left particularly, is alleging right now. The left parties are saying that the TMC government let this happen so that the government would polarize the entire political scenario between TMC and BJP, so that the other forces who are not playing the communal cards uh, are just out of the picture. So this is what the CPM is alleging. But we have no evidence to say that the government let it happen intentionally. But we have certainly evidence to say that the police were not prepared enough. जी, जी। हम इस मसले पे और जो रामनवमी के बाद जो कुछ भी घटा है पश्चिम बंगाल में, उस पे आगे भी बात करेंगे। हम प्रतीक के पास लौटते हैं। प्रतीक, जो आपकी स्टोरी है वो काफ़ी इन डेप्थ है, काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में है। आप हमारे जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं बताएंगे कि पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये स्टोरी आपके पास आई कैसे, क्योंकि एज अ रिपोर्टर आप बैठे हैं पुणे में
और आप मध्य प्रदेश में की स्टोरी कर रहे हैं और वो 70-80 लोगों को रीच कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अपने सोर्स के बारे में, सोर्स के बारे में ना बताएं, पर एक प्रोसेस के बारे में बताएं कि जो रिपोर्टर का प्रोसेस होता है, आप तक खबर कैसे आई, खबर क्या है, इसको थोड़ा संक्षेप में बताएं। जो जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था इनिशियली, जो ओरिजिनल थे, तो वहां उनसे एक लिंकअप हुआ मेरा एक जन से। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बहुत पहले से अप्लाई कर रखा था, और वहां से वो स्टोरी फिर मैं पता करते गया उसके बारे में। मतलब वहां से इतना पता चला कि भाई उन्होंने एक साल पहले अप्लाई किया था और उन लोग को बुलाया नहीं गया है, और इस तरीके से रिक्रूटमेंट हो। तो अभी इनिशियली इसमें जब अभी हुआ ये था कि 2021 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पंचायत संचालनालय रहता है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, तो उन्होंने पैसा जो एक्ट है, जो पैसा का जो जितने भी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए पैसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इनकी वैकेंसीज निकाली। ठीक है। और काफी तमाम 10,000 लोगों की और भी बहुत लोगों ने इसके अप्लाई किया। अब उन सब का मार्क्स देख के, उनका मेरिट देख के एक पूरी मेरिट लिस्ट क्रिएट की गई थी, और 9, 10 और 11 फरवरी को इनके इंटरव्यूज थे भोपाल में, इन सभी लोगों को जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था। 2021 इतने में लोगों ही? में, इतने टोटल लोगों में से 891 लोगों को उन्होंने निकाला था, मतलब सेलेक्ट किया था मेरिट लिस्ट में। तो अब जो हुआ ये कि जब ये जाने लगे, वहां पहुंचने लगे, तो कोई तो बेचारे पहुंच गए थे वहां, कोई रास्ते में थे, कोई बस में चढ़ रहे थे, कोई दूसरे स्टेट से भी आया था, मतलब कि एमपी के ही है लेकिन दूसरी जगह थे, तो वहां से अपना काम नाम छोड़ के इधर आए हुए हैं वो इंटरव्यू देने। तो वहां जाके पता लगा कि भाई इन्होंने कैंसिल कर दिया रातों रात, एक ही दिन में बोल दिया कि नहीं, ये इंटरव्यू अभी स्थगित हो गया है, कुछ दिनों बाद। तो वो लोग जो थे वो लोग कांटेक्ट करते गए उनसे, अचानक साल भर वो थ्रू आउट कॉन्टेक्ट उनसे रहा कि भाई कब होने वाला है, आपने बोला तब होगा, तो बोले थे कि हाँ थोड़े दिन बाद होगा, थोड़े दिन बाद होगा। ऐसे ऐसे करते करते पता चला कि अचानक वो सभी जो पोस्ट थी उन पे ऑटोमेटिकली भर्तियां हो चुकी। जी। तो वो जो भर्तियां हुई थी, ठीक है, वो हम्म। संघ और भाजपा से जुड़े जितने भी लोग हैं, मतलब वो सारी की सारी भर्तियां उन्हीं से जुड़े लोगों की। अब ये पता करने के लिए मैंने इसकी एक लिस्ट निकलवाई एक अपने जरिए से। तो वो जो सिलेक्शन जो लिस्ट थी ना, उसमें इन लोगों के नाम मिल गए थे मुझे, ये कौन लोग सेलेक्ट हुए। हम्म। तो जब पूरे इन लोगों के नाम मिले तो अब वो कैसे वेरीफाई करें, तो फिर वो बेसिकली ओसेंट के थ्रू इधर से उधर से ये कर करके फिर मैंने बहुत लोगों को फोन भी किया, बहुत लोगों को फोन। उनमें से कुछ लोग बताने लगे कि हाँ हम संघ से हैं। मतलब उन्होंने मैंने इस तरीके से बात किया कि वो नहीं मतलब बोलते ना कि डायरेक्टली। कुछ लोगों ने कुछ समझ में आया तो उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या करना है। एक जन ने मेरे को धमकाया भी, मतलब कि मतलब हमसे मत भिड़ना वरना ये कर देंगे वो कर देंगे तमाम चीजें। तो ऐसे ऐसे करके पूरा जब निकला तो वो जो एक्चुअल ओरिजिनल कैंडिडेट थे, और हैरत की बात यह है कि इनमें से एक का नाम ही मेरिट लिस्ट में नहीं। हम्म। और 88 लोग का मेरे को जो मिला, एक्चुअली और भी लोग थे बट वो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की लिस्ट अलग है। तो ये जो पैसा के 88 जो लोग थे, मतलब सारे के सारे कनेक्टेड है। मतलब कोई जनजाति सुरक्षा मंच से कनेक्टेड है, कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कनेक्टेड है, कोई भारतीय जनता युवा मोर्चा से कनेक्टेड है, कोई भाजपा से कनेक्टेड है। और इसमें आप मतलब एक हैरानी की बात एक ये है कि ये जितने भी लोग थे ना, ये मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके एक ओएसडी हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम। हम्म। ये उनको बहुत ऐसा मानने वाले लोग हैं, मतलब उनके फॉलोअर्स, उनके फेसबुक पे आप देखोगे तो उनके फोटो को लेके वो बिल्कुल की तारीफ मतलब करे जा रहे हैं। एक वो और एक निशांत खरे करके एक और एक लीडर है बीजेपी का, इंदौर से। तो ये आई थिंक, और ये लक्ष्मण सिंह मरकाम है, ये खुद एक ट्राइबल। अभी एमपी की राजनीति में एक बहुत खास चीज ये है कि ये ट्राइबल वोट साधना चाहता है। अपने कुछ एक आध 1.5 साल पहले वहां पे मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे अपने वहां पे। तो उन्होंने भी एक मतलब पूरा ट्राइबल्स के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तो बीजेपी का वो है कि ट्राइबल्स को साधना है हम्म। बेसिकली, क्योंकि ट्राइबल एक कंसिडर किया जाता है, मे बी वो नहीं भी हो, लेकिन बहुत पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि ट्रेडिशनल वोटर होते हैं कांग्रेस। हम्म। तो वो एक उनको साधने का भी इसके जरिए है। तो लक्ष्मण सिंह मरकाम, खास बात यह है कि लक्ष्मण सिंह मरकाम है इंडियन नेवी के एक ऑफिसर। ठीक है, हम्म। आईएनएस डिपार्टमेंट होता है, उसके एक ऑफिसर है। इसके पहले वो डिफेंस मिनिस्ट्री में पोस्टेड। हम्म। अब ये यहाँ के ओएसडी बन के आए हैं। ओएसडी ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट वो संघ की गणवेश में दिखेंगे आपको।
भाजपा के मंच से भाषण दे रहे हैं वो, मतलब वो ऐसा लगता है कि ये भाजपा नेता ही है, भाजपा आरएसएस के ही नेता है। वो ऐसा लगता है, वो ऐसा लगता नहीं है कि ये भाई इंडियन नेवी के कोई अफसर है। जी। तो ये भी एक बहुत अजीब बात है। तो वो पूरा जो स्कैम था, मतलब ये जितने लोगों को हायर किया, ना ही इनमें से कोई मेरिट लिस्ट में था, ये सब के सब इन लोग को इनके थ्रू कनेक्टेड है। कोई एबीवीपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या है। इनको चुनकर लाया गया या इन लोगों ने फॉर्म वॉर्म भी अप्लाई किया था? इन्होंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनका नाम ना वो मेरिट लिस्ट में था, ना ही वो फॉर्म भरने वाली लिस्ट थी, वो भी थी मेरे पास, उसमें भी इनका नाम नहीं। जी जी। इनका कहीं भी कुछ भी नाम नहीं था। इनको रातों रात अचानक से फोन आता है और इनको बुलाया जाता है, और इनका इंटरव्यू ट्रेनिंग तीनों, मतलब दोनों चीजें एक साथ ही हो जाती है। और ये सब जो पूरा होता है मामला, और उसमें मतलब सीएम भी है वहां पे, ये मरकाम भी वहां पे है, और इन लोग को देखा जा सकता है इनके फंक्शंस में बहुत बार। बड़े बड़े लीडर, जैसे इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के खास एक नेता है रमेश मेंदोला करके, उसके साथ देखा जा सकता है। तो पूरा मतलब बोलते ना, पूरे पूरे आरएसएस बीजेपी से पूरे जो भी इनके आउटफिट्स हैं उनसे जुड़े लोग। तो ये बेचारे जो लोग वहां पे एक साल से जो पूरा इतना कर रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, वो लोग को बहुत मतलब बहुत खराब लगा इस बात का कि मतलब कम से कम हमारे इंटरव्यूज तो लेने चाहिए था, अगर आप इतना धांधली भी कर रहे थे तो इस तरीके से कि सीधा मतलब इतने जो सिलेक्टेड लोग जिनको मेरिट लिस्ट में आपने लिया, उनको बुलाया, सीधा उनको दरकिनार करके एक साल तक हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अचानक से ये करते हैं और सेलेक्ट कर लेते जी जी। हैं। तो बहुत मतलब अजीब सी बात है इस पूरे इस केस में। तो आप सबने सुना कि प्रतीक की रिपोर्ट को लेकर कि किस तरीके से जो लोग पेपर में बैठ ही नहीं रहे हैं, जो लोग फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है, उनको बुला के नौकरी दे दी जाती है। इस तरीके की रिपोर्ट करने में हमारा समय खर्च होता है और संसाधन खर्च होता है। और आप सब जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से, आप यानी हमारे दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर आपके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। फिलहाल वीडियो में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। हमारी पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com और साथ ही पॉडकास्ट के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां आए और अपना सुझाव, अपनी राय दें कि हम अपने पॉडकास्ट को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।